we will continue with our series of scoring high in the exam, and this is my first question. Basically today we are going to discuss the questions of Gujarat and TSC that was held last year. So this is my first question, and you have to give me the answer of this question. Now these questions are not that worth discussing also, but I really want to give you the feel of the question. So this is the first question. Please attempt this question and tell me the answer. Now see, this is a very simple question. What we will do is we will use the remainder theorem to solve this question. Now what the remainder theorem is saying, if my polynomial px, let this polynomial as px, if my polynomial px is divided by another polynomial qx, so the remainder will be equal to p of q is equal to 0. What I mean to say, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे x plus 1 को 0 से equate करो. So you will get x equal to -1. So my remainder when x plus 1 is when this polynomial x to the power 4 minus x cube plus 2x square minus x minus 1 is divided by x plus 1, that will be equal to p of -1. करना क्या है, x की जगह आपको -1 पुट कर देना है. So it will be -1 raised to the power 4 minus of -1 raised to the power 3 plus 2 into -1 का होल स्क्वायर minus of -1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से बेटा. -1 raised to the power 4 is 1. Here it will be minus of -1 plus 2 plus 1 minus 1. ठीक है, ये +1 -1 got cancelled, so it will be 2 plus 2, which is equal to 4. So the correct answer of this question will be equal to option number A, that is equal to 4. The question is saying I have to find the number of real roots of this polynomial x cube plus 1 equal to 0 या x cube plus 1. हम ये जानते हैं कि real roots वही होते हैं the point where the graph of the polynomial meets the x axis, that is called the real root. Fine. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे ये पता है सर कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो it will be like this. It will be like this, and it is meeting the x-axis at only one point, which is equal to x equal to -1. So the real root of this equation, the number of real roots or the number of real zeros of this equation will be option number A, that is 1. It will not be equal to 3. 3 is the maximum number of real roots that any polynomial can have, that any cubic polynomial can have. Any cubic polynomial can have almost 3 real roots, but here in this case the only real root of this equation will be x equal to -1. एक काम और कर सकते हैं सर, ये x equal to -1 आया कैसे? How you got to know that only I am having the other two roots of this polynomial will be an imaginary root. तो एक काम अपन ऐसा कर सकते हैं. We know that this is px. I also know that p of -1 will be equal to 0. ठीक है, it will be -1 cube plus 1 cube, which is equal to -1 plus 1, which is equal to 0. That means I can say that x plus 1 is a root of this polynomial. Is a root of this polynomial. अब क्या करें, मुझे बाकी के दो रूट्स निकालने हैं, तो एक काम करते हैं अपन इस पॉलिनोमियल को x क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं. फॉर दैट आई नीड टू इरेज फ्यू थिंग्स. सो मैंने क्या किया, x प्लस 1 से मैंने x क्यूब प्लस 1 को डिवाइड कर दिया. नाउ व्हाट आई एम हैविंग, देखो यहाँ पे पहले x स्क्वायर आया तो ये x क्यूब हो गया प्लस x स्क्वायर आ गया. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस हो गया. सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट x इक्वल टू माइनस एक्स. सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, देन हियर इट विल बी माइनस एक्स. अब जब दोबारा व्हाट आई विल डू, प्लस, दिस विल बी प्लस, सो here it gets cancelled, it will be x plus 1. now what I am doing is, अब मैं फिर से 1 लेकर आया तो it will get cancelled. So now I am getting a cube quadratic x square minus x plus 1. अब मुझे कैलकुलेट करना है कि what are the roots of this quadratic.
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो मैं आई विल यूज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सो एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। क्या किया मैंने? डिवाइडेड बाई 2। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी किया मैंने, डिवाइडेड बाई 2 है। सो बेसिकली आई गॉट 1 plus minus square root of minus 3 divided by 2. Now this shows that, and the square root of minus 3 is not possible. So this shows that there will be only one positive root, that will be x equal to minus 1, and the other two roots will be imaginary, or they will not be real number. There will be only one real number, only one root as the real number, that will be equal to x equal to minus 1. The other two roots will not be real number. ठीक है सर? अब इस क्वेश्चन का if you are little bit comfortable with graph, then you can also draw the graph of this cubic polynomial. The graph of this cubic polynomial will be like this. Now here you can see that it is cutting x-axis at only one point. It is cutting x-axis at only one point, and which is equal to x equal to minus 1. Rest on all other points, it is not cutting the x-axis. So there will be only one real root of this equation, and the other two roots of this equation will be imaginary. I hope this question is clear. I hope this question is clear to everybody. I'm sorry. So it would be 63. It will be 63. Just wait a minute. I forgot to divide it by 2 because I was more concerned about other things. ठीक है, चलो देखो 3 pi r square will be equal to 4158. अब अपन क्या करेंगे? 3 into 22 by 7 multiplied by r square will be equal to 4158. ठीक है सर, डिवाइड कर दो इसको। जब अपन ने 11 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे कितना आया था, कोई बताएगा मेरे को फिर से? 370, बता दो यार कितना आया था? 378। फिर अपन क्या करेंगे? इसको वापस से 3 से डिवाइड कर दो, या एक काम करो ना, डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दो। ये डिवाइड हो रहा है, ये मेरे को दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर? 378 जो है ना, इसको मैं 360 प्लस 18 लिख सकता हूँ। तो 360 भी 6 से डिवाइड हो रहा है, 18 भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड होगा 6 से, दैट आई नो। सो जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो you will get 63 here. 63. Now r square will be equal to 63 into 7. अब बेटा 63 into 7 को मल्टीप्लाई करके वीरता अवार्ड मत लेने जाना. This will be equal to 7 into 9 into 7. So basically r will be equal to 7 into 3, which is equal to 21. So 21 centimeter, or option number B will be the correct answer of this question. क्या समझ में आई बात? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? एक बार फिर से सुन लो जिनको समझ, एक बार फिर से सुन लो जिनको समझ में नहीं आती है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, 3 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4158। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सो व्हाट इट विल बी, 3 into 22/7 into r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4158। डायरेक्टली डिवाइड कर दो, वैसे भी देखो कहीं पे अंडर रूट वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो डिवाइड होना इसकी मजबूरी है। जब आप 11 को 4158 से डिवाइड करोगे you will get 378. अब यहाँ पे the big question is whether this number is divisible by 6 or not. वैसे भी ये नंबर 6 से डिवाइड तो होगा ही होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको ऐसे देख लो, 378 can be written as 316 plus 18. Now this 360 is already divisible by this 6, that I know, and this 18 is also divisible by 6. So I can directly write here that this will be, here I'm going to get r square by 7 is as equal to 63. अभी यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. So r square will be equal to 7 into 9 into 7, which is equal to 7 into 3, which is equal to 21. So the correct answer of this question will be option number B, that is equal to 21 centimeter. क्वेश्चन देखो भाई, मीडियन निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है? सबसे पहले अपने को जो हमारे पास डेटा है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है. हम क्या करते हैं, हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. सबसे पहले -5 आया, -5 के बाद -3 आया, -3 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा सर 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7,
फिर क्या आएगा 9। अब क्या करो, just count the number of data. So number of data are 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 Yes, sir. 6 7 8 9। बेटा जब number of data is odd, you should feel very happy. Why you should feel very happy? Because in that case, your median will be equal to n plus 1 divided by 2th term. Your median will be equal to n plus 1 divided by 2th term, where n is your number of data. So here the value of n is 9. So your median will be equal to 9 plus 1 divided by 2th term. That is equal to 5th term. So 5th term here is how much? 3. So the correct answer of this question will be how much? 3. So this is how the question was to be done. किसी को कोई objection है इस question में? किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस क्वेश्चन में? प्लीज बताइए। नहीं है तो not going to give you time. The question is as shown in the figure, if the ratio of angle POR, इस वाले एंगल का रेशियो और एंगल ROQ का रेशियो, POR और ROQ का रेशियो 5:7 है, तो मुझे SOQ की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान सा सवाल है सर। SOQ क्या हो जाएगा? एंगल SOQ विल बी इक्वल टू एंगल POR। ठीक है सर, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इन दोनों एंगल्स का रेशियो 5:7 है और टोटल एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। व्हाई? बिकॉज इट इज एंगल मेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। नाउ आई हैव 12 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? 15 डिग्रीज। 15 डिग्रीज। अब बेटा इस डिवीजन में अगर टाइम लगाओगे तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। Then you have to tell me angle SOQ. Angle SOQ will be equal to angle POR, और angle POR की वैल्यू कितनी थी? 75 degrees. So the correct answer of this question will be equal to option number B, which is equal to 75 degrees. क्या ये बात सभी को समझ में आती है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, सर मुझे डाउट है। The question is saying if the decimal expansion of a rational number 14580 divided by 625 into 3, there are how many digits after the decimal? This is the question. Now you have to think two things. अगर ये जो नंबर होता 14580, इसकी जगह कोई और नंबर होता से 14570, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता कि जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाता। तो ये 3 से डिवाइड, ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ये बेसिकली द एग्जामिनर वांट्स यू टू डिवाइड दिस नंबर बाय 3, देन ओनली you will be in a position to calculate how many decimals will be there, how many decimal places will be there. ठीक है? So the examiner wants you to calculate. पहली चीज। दूसरी चीज ये, जब 14580 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो you will get 4860। You will get 4860 जब आप 14580 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो you will get 4860। अब इसके बाद आप क्या करो, don't do it like this, you just do one thing, इस 4860 को ना आप 486 into 10 लिख दो। Why I am doing like this? There is a purpose of it. आप इसको 486 into 10 लिख दो, फिर आप क्या करो, इसको आप लिख दो 486 into 2 into 5। ठीक है सर? और आपका जो डिनोमिनेटर है डेट इज 625, तो 625 इज बेटा नथिंग बट 5 into 5 into 5 into 5। 625 is nothing but 5 raised to the power 4। क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि 625 is 5 raised to the power 4? यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 into 5 into 5 into 5। अब याद करो चैप्टर नंबर 1। याद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अब याद करो चैप्टर नंबर 1। याद करो चैप्टर नंबर 1 जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने पढ़ा था लास्ट की एक्सरसाइज कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है और रिपीटिंग कौन सा होता है, तो हमने ये बात की थी कि जितने 10 होंगे उतना ही मेरे पास, जितने 10 होंगे उतने ही मेरे पास जीरोस होंगे। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, and I will get the total number of
digits after the decimal. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, मैं सबसे पहले इस 5 से 5 को कैंसिल कर दूंगा. Now I am having 486 into 2 divided by 5 क्यूब. ठीक है सर. अब मेरे को पता है कि मेरे पास 5 क्यूब है, तो बेसिकली आई कैन डू, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 into 2 into 2 into 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो व्हाट आई विल हैव 486 into 2 raised to the power 4 divided by 10 into 10 into 10. अब ये नंबर कुछ भी होगा, दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 1000, सो देयर विल बी 3 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल. ये नंबर कुछ भी हो, 486 into 2 raised to the power 4, I'm not at all concerned with it. But when I will divide this number by 1000, so I will have total 3 digits after decimal. So my correct answer of this question will be equal to option number B. क्या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, ताकि अगर किसी के मन में कोई भी संशय है तो वह निकल जाए. सबसे पहले मैंने क्या किया सर, मैंने 14580 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. I got 4860. मे बी इसकी वैल्यू कुछ अलग आ सकती है, बट दैट इज नॉट माई कंसर्न. दैट इज नॉट माई कंसर्न. फिर जो भी वैल्यू आई, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि 14580 को मैंने 3 से डिवाइड किया. अब जो भी मेरे पास वैल्यू आई, उसको उसमें जो एक 10 का फैक्टर था उसको मैंने लिख दिया 486 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है सर. जो डिनोमिनेटर मेरा था 625, उसको मैंने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. अब मैंने क्या किया, इस ऊपर वाले 5 से इस नीचे वाले 5 को कैंसिल कर दिया. सो फाइनली व्हाट आई एम लेफ्ट विथ 486 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब. अब मुझे चाहिए क्या, मुझे डेसिमल्स चाहिए. मुझे डेसिमल चाहिए. तो डेसिमल कब आता है, जब मेरे पास 10 का फैक्टर होगा तभी मेरे पास डेसिमल आएगा. तो 10 का फैक्टर मेरे पास कब आएगा, जब इस 5 को मैं 10 बना दूं. इस 5 को मैं 10 कैसे बना सकता हूं, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई मेरे डिनोमिनेटर को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. आई एम सेइंग द उल्टा. अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई मेरे मुझे न्यूमरेटर को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Same way I will do here. Same way I will do here. So finally I am having 486 into 2 raised to the power 4 divided by 10 cube. तो अब मुझे ये पता है कि जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. और यहाँ पे इस प्रोडक्ट में कहीं से जीरो तो आने वाला नहीं है, ये मैं देख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 5 का फैक्टर है नहीं, तो जीरो आएगा नहीं. तो भाई जब जो भी इसका प्रोडक्ट हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. जो भी आएगा उसके 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद मुझे करना है. तो भाई finally there will be 3 places of decimal, or the answer will be option number B. This is method number 1. Method number 2 for solving this question will be, एक और मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने का. क्या है सर, देख लो ध्यान से. मेथड नंबर 2 फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विल बी, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो. 14580 को 3 से डिवाइड कर दो. सो व्हाट यू विल गेट से 4860 डिवाइडेड बाय 625. अब इस 625 को सर मुझे 100 के मल्टीपल में या 10 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करना है. 625 को मुझे 10 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करना है. तो व्हाट आई गॉट, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 625 इंटू 2 इज इक्वल टू 1250. तो यहाँ पे बेसिकली मुझे 125 मिल गया. और 125 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई एम गेटिंग 1000. सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 16. मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो इट विल बी 4860 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 6250 मल्टीप्लाइड बाय 16. अब यहाँ पे एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये है कि जैसे आप 625 into 16 देखोगे, यू विल फाइंड दैट सर इट इज कमिंग आउट टू बी 10,000. तो देयर विल बी 4 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल, और उसके बाद आप एक नंबर खोकर आ जाओगे. ठीक है, क्योंकि बेटा ये है 4860 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 10,000.
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ना भाई, तो there will be how many decimals after there will be how many digits after the decimal? 3 digits. So here also the correct answer of this question will be option number B, which is equal to आती है, मेरे को हंसी आती है, why the commission has asked such a easy question. The question is the HCF of 96 and 404 is 4. I have to find their LCM. तो भैया एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, HCF multiplied by LCM is equal to product of numbers. याद आया? पढ़ते हैं, वही चीज को यहाँ पे यूज कर लो. 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस विल गिव मी द एलसीएम ऑफ द 4 नंबर्स. अब यहाँ पे एक चक्कर आ रहा है, चक्कर ये आ रहा है, फिल्मी चक्कर आ रहा है कि सर मैं इसको सॉल्व कैसे करूं. कुछ नहीं करना है सॉल्व करने में भैया, देखो ये 101 है, कैंसिल हो गया. अब आपको ये 101 दिखता होगा, लेकिन ये 101 जो है ना, ये मेरे को दिखता है 100+1. मेरी समस्या तो खत्म हो गई. मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं उसे यहाँ पे यूज करूंगा. एंड आई एम वेरी फ्लुएंट इन एडिशन, सो दिस विल बी 9696. That is option number D will be the correct answer of my question. Option number D will be the correct answer of this joke. So for a quadratic polynomial, this one, the sum of the zeros is, sum of the zeros क्या होता है sir? It is equal to minus b by a. So it will be minus of -2 divided by -1, which is equal to 2. So the correct answer of this question will be option number B. The question is saying zeros of the quadratic polynomial px equal to 2x square minus 3x plus k minus 1 are inverse of each other. That means, sir, if one zero is alpha, then the other zero will be 1 upon alpha. अगर आपको नहीं भी पता है कि कैसे करेंगे इस केस में, तो अब आप क्या करोगे? एक जीरो अगर अल्फा है, एक रूट अगर अल्फा है, तो दूसरा रूट आपका 1 अपॉन अल्फा है. अब भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे सम ऑफ रूट से तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बिकॉज सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा. इससे आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना. सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड इट विल बी इक्वल टू 3/2. तो इससे तो आप कुछ कर नहीं सकते. तो अप्लाई लिटिल बिट ऑफ योर हेड. दूसरा हमारे पास टूल क्या है? दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन अल्फा. So alpha multiplied by 1 upon alpha will be equal to c by a, that is equal to k minus 1 divided by 2. So 1 will be equal to k minus 1 divided by 2, or I am getting k is equal to 3. So my correct answer of this question will be equal to k equal to 3 or option number A. क्या ये बात सबको समझ में आती है क्या? मैं कौन होता हूं नहीं मानने वाली आपकी बात. The question was the pair of the equation 5x minus 8y plus 1 equal to 0 and 3x minus 24 upon 5y plus 3 upon 5 equal to 0 has how many solutions? भाई या तो डायरेक्टली कर लो, अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो एक काम करो ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 से जब आप दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी 15x minus 24y plus 15 equal to 0. Plus 3 equal to 0. Now from here you can directly see that the ratio of a1 upon a2, 5 upon 15 is equal to minus 8 upon minus 24 is equal to 1 upon 3. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. इसका मतलब जानते हो दया क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि there will be infinitely many solutions of this question. The two equations will have infinitely many solutions. Okay, next question. बोलना चाहता हूं मैं. The question is saying after 5 years the sum of the age of father and son will be 70. Then 4 years ago उनके सम ऑफ उनके एजेस का सम कितना था ये मुझे बताना है. अब एक सवाल जो एक
So what I was saying that कि सर हमने present age मान लिया f और s, तो आफ्टर 5 years द एजेस विल बी f plus 5 and s plus 5, क्योंकि भाई अगर मेरी एज आज की डेट में 30 साल है तो आज से 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, 35 साल की होगी। तो जो इनका जो एजेस हो गए वो f plus 5 and s plus 5 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f plus 5 plus s plus 5 is equal to 70, or I will have f plus s is equal to 60। डन। अब मेरे को क्या पूछा है कि 4 साल पहले इनकी एज कितनी थी, तो 4 साल पहले मतलब इसकी एज से भी 4 साल घटा दो और इसकी एज से भी 4 साल घटा दो। सो द रिक्वायर्ड एज विल बी इक्वल टू f plus s minus 4 minus 4 which is equal to 60 minus 8 which is equal to कहाँ गया, option number D, that is 52 years. So my dear friends, the correct answer of this question will be option number D, which is equal to 52 years. I hope this question is clear. You should not take your opponent lightly, and this question is to treat you this only. The question is HCF of smallest prime number and smallest composite number. अब यहाँ पे दो चीज आती है बेटा। अगर आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबको पता है कि सर इट इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इट इज 2, अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन 1 के बारे में वी आर नॉट दैट कंसर्न। हमसे अगर पूछा कोई, अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आई विल स्ट्रेट अवे से सर दिस इज 1, और हो गई गए भैंस पानी में। हो गया क्वेश्चन गलत, नहीं होगा सिलेक्शन, लिखवा लो। क्योंकि अगर एक आसान पेपर में आप क्वेश्चन गलत करके आओगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। अब देखो, लेकिन इवन इन दैट केस आल्सो आई थिंक यू वुड हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्टली। अगर आपने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को अगर आपने 1 भी लिया होगा, तो भी इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आना चाहिए वो 2 ही आना चाहिए। वो सॉरी, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आना चाहिए वो 1 ही आना चाहिए। The highest common factor in that case also should be equal to 1. I don't know how you guys are giving the answer as option number B. अगर आपने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को 1 भी लिया तो भी आपका जो HCF आना चाहिए वो 1 ही आना चाहिए। बट द करेक्ट थिंग विल बी बेटा, एक बात याद रखो, जो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1 is neither prime nor composite। बात समझ में आती है क्या? 1 is neither prime nor composite। तो यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आपने 2 ले लिया, बट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा यहाँ पे बताइए? What will be the smallest composite number? Smallest composite number will be 4। तो आपका जो HCF होगा वो क्या होगा? Sir, but What? sir, why is बोलो। 1 not a composite number? Up that even I don't know. To be frank enough, that even I don't know. But because देखो prime number की क्या definition थी? What was the definition of prime number? A number that is having only one and itself as the common factor, right? 1 and itself as its factors। तो अब अगर मैं 1 के पास जाता हूं तो 1 का एक फैक्टर तो 1 ही है, 1 का एक फैक्टर 1 भी है, और 1 का एक फैक्टर 1 हो गया एंड इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे 1 भी आया। सो देयर वाज ए एम्बिग्यूटी, that is why they have not considered 1 as a prime number and as a composite number। अगर मैं एक तरीके से देखूं तो 1 is satisfying even the definition of a prime number, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है ना सर, 1 का तो एक ही फैक्टर हुआ 1। So it is satisfying the definition of a prime number, but it is also satisfying the definition of a composite number because it is having 1 as the factor and it is having itself as the factor. So it is satisfying both the definitions. So that is why I have not taken this number 1 in any category. That is why 1 will not be treated as a prime number and 1 will not be treated as a composite number. So my dear friends, the correct answer of this question will be option number B, that is equal to 2. Even I also marked the option A as wrong initially.
I also marked option A as wrong initially, so option number A will not be the correct answer. Rather, option number B will be the correct answer. I do mistakes because I want you to know what type of practical mistakes that you can make in the exam. These are the practical mistakes that you can make. अच्छा ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1, 2 और 1 का जो HCF आया वो 1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए. No. Smallest prime number will be 2, smallest composite number will be 4, HCF of 2 and 4 is 2, so option number B will be the correct answer of this question. बात समझ में आती है सबको? जिसको समझ में नहीं आती है प्लीज देखो, इस क्वेश्चन में मेरे को 11th टर्म निकालना है इस एपी का, तो 11th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि can I eliminate some of the options? Yes, I can. Yes, I can eliminate some of the options. देखो यहाँ पे जो common difference है ना बेटा, it is increasing. The common difference is -1/2 minus -3, that is equal to 3 minus 1/2, which is equal to 5/2. The common difference here is increasing and it is equal to 5/2. So my 11th term will be positive only. तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा. अब मेरा 11th टर्म होगा क्या? -3 plus 10 into 5/2, which is equal to 5. 25 minus 3, which is equal to 22. Option number B will be the correct answer. Why I told that you can eliminate some of the options? मान लो कभी एग्जाम में क्या हुआ कि आपने जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस किया, आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिला, तो एटलीस्ट ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे. आप या तो ये मार्क करोगे या तो ये मार्क करोगे. योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विल. एक बात याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता अगर आपसे अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ड हटा देते तो. ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता अगर ये यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ड हटा देते तो. या उस केस में खैर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि वी डोंट हैव फर्स्ट we don't know from where this series of integers started, so we can't tell that. But we ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था. There can be multiple possibilities in this question. What I wanted to tell you is you should remember one fact, that 0 is neither positive nor negative. 0 is just 0. तो यहाँ पे बेसिकली आपको फर्स्ट 1000 नंबर्स का सम निकालना है. द आइडिया इज वेरी सिंपल, n/2 विच इज इक्वल टू 500 into a plus n-1 into 2a plus 1 into d, 2 into 1 plus n-1 कितना है? n-1 will be here 999. 999 into 2, 2a plus n-1 into d. So this will be equal to 500 into 1001. Now, so the correct answer of this question will be equal to 500, 500. So the correct answer of this question will be 500, 500. Next question. भाई मैंने आपको चिल्ला के एक बात बताई थी कि the distance of a point from y axis is the x coordinate of the point. ठीक है सर, लेकिन अगर ये बात याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं भाई, इस पॉइंट को एक बार प्लॉट कर लो ना यार. ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, -2, -3 इज लाइंग हियर. तो इस पॉइंट पे आने के लिए व्हाट यू विल डू इज, this distance is -3, this distance is -2. So the distance of the point from y-axis, the distance from the point from y-axis is 2 units. So the correct answer of this question will be option number A, that is 2. ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो यार, जो अपन ने सीखा था कि the y coordinate is the distance of the point from x-axis and the x coordinate is the distance of the point from y-axis. just उल्टा होता है, तो वो चीज याद रहेगी. तो within 2 seconds or 3 seconds you can mark the question. ठीक क्वेश्चन भैया कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए सर. एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -5. दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4. अब इन दोनों लाइंस को एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है
तो ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस। अब कोई ये मत बोलना कि सर एक्स एक्सिस तो वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल होता है, कोई बात नहीं, ये पॉइंट्स भी तो एग्जैक्टली वो नहीं है ना। अरे एक सेकंड रुको, ये क्या हो गया, ये पॉइंट्स भी तो एग्जैक्टली वो नहीं है ना। सो द एक्स एक्सिस विल बी दिस विल बी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है सर y इक्वल टू 0। दैट मींस ये जो पॉइंट P होगा ना, द पॉइंट P, ये जो पॉइंट P होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम रेशियो मान लेते हैं लैम्डा इज टू 1। नाउ आई विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला। नाउ आई विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था बहुत दिनों पहले, तो अभी आपको याद नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, पहले आप -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट -5 इंटू 1। फिर आप लैम्डा को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 लैम्डा डिवाइडेड बाय lambda plus 1, here it will be lambda plus 1, and this will be equal to 0. Why this will be equal to 0? Because the coordinate of, because the equation of y x axis is 0. मतलब क्या है, x एक्सिस की इक्वेशन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का 0 होता है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ सो द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस विल बी इक्वल टू 0, और the y coordinate of this point will be equal to 0. इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन y कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे। तो 4 लैम्डा -5 is equal to 0, so lambda will be equal to 5/4, or option number C will be the correct answer. So my dear friends, the correct answer of this question will be option number C. मुझे x कोऑर्डिनेट से मतलब ही नहीं है, अगर x कोऑर्डिनेट पूछेगा तो निकाल देंगे भाई। फाइंड द, अगर ऐसा पूछा जाता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस विद द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स, तो अपन यहाँ इसके बाद से अपन x कोऑर्डिनेट निकाल देते, बट ये हमसे पूछा नहीं गया है, सो द क्वेश्चन विल स्टॉप हियर। So we were discussing this question. Here x bar means mean. Here x bar means mean. And ये symbol 9th class की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसलिए इन लोगों ने इस सिंबल को यहाँ पे लिखा नहीं है। सो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। व्हाट वी विल डू, दिस सिंबल मींस समेशन। So let us try to understand this. xi minus x bar, तो अगर मैं I equal to 1 लूंगा, so this will be x1 minus x bar. Second will be x2 minus x bar, x3 minus x bar, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू x9 माइनस x बार। ठीक है सर, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, सम बोल रहा है तो सारे टर्म्स को ऐड कर दो। सो हियर आई विल हैव x1 plus x2 plus dot 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 plus x9 minus x bar plus dot 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 plus x bar. So there will be total 9 x bars here. So this will be x1 plus x2 plus dot 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 up to x9. और ये जो 9x बार है basically what they are nothing but x1 plus x2 plus x3 up to x9. So x1 plus x2 plus dot 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 plus x9, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम नंबर को डिफरेंस कर रहे हो, so the correct answer will be equal to 0. So the correct answer here, it will be equal to 0. So my dear friends, this is how